Dear student, today we have learned about method of calculating interest on drawing. इससे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने समझा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, उसमें ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग की अमाउंट दी हुई थी. फॉर एग्जांपल ए विथड्रॉ rupees 50,000 during the year interest charge on drawing at the rate of 8% per annum. क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, 50,000 पे एट द रेट ऑफ 8% फॉर 6 मंथ के लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करते थे. लेकिन अब जो नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन समझनी है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट पे चार्ज किया है. फॉर Method of calculating interest on drawing. Interest on drawing may be calculated from any of the two methods disclosed as follow: simple method and product method. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए टू मेथड है हमारे सामने, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. सिंपल मेथड में, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड separately on each amount of drawing from the date of drawing till the closed of account. यानी कि डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल है. तो जब क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल दिया होगा तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो डेट ऑफ विड्रॉल से लेकर के अप टू द टिल द क्लोज्ड ऑफ अकाउंट यानी कि 31 मार्च तक. इंटरेस्ट ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द following formula: interest on drawing, amount of drawing at the rate of percentage या interest upon 100 for separate amount पे जो भी मंथ होगा उसके अकॉर्डिंग. एंड नेक्स्ट product method. Under this method, first of all the products are computed by multiplying the each set of drawing from its duration. Thereafter the different products are added and the interest is calculated on the total product. तो ये जो प्रोडक्ट वैल्यू होगी ये हम कैलकुलेट करेंगे. हमारा जो सेपरेट अमाउंट है उस सेपरेट अमाउंट पे कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसका इनटू करके, यानी कि अमाउंट इनटू मंथ. जब उसका इनटू करेंगे तो प्रोडक्ट वैल्यू जो अराइव्ड होगी उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फॉर 1 मंथ. The advantage of this system is that separate calculation are not required each time. Following formula is used for the calculating of interest under this method. Interest on drawing is equal to total products rate of interest upon 100 into 1 upon 12 for 1 month. अब ये दोनों मेथड हम लोग एक इलिस्ट्रेशन लेंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके हेल्प से हमें और अच्छे से ये क्लियर होगा. नाउ टेक इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18B. A is a partner in a firm. During the year ended 31st March 2018, A's drawing were rupees on 1st June 1000, 1st August 750, 1st October 1250 and 1st December 500, 1st February 500. तो डिफरेंट डेट है, डिफरेंट अमाउंट है. तो इस पे दो मेथड है, यानी कि सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड. तो पहले सिंपल मेथड समझते हैं. ए ड्राइंग on date wise, date 1st June
amount rupees 1000. 1st August, amount rupees 750, and 1st October 1250, and 1st December, amount rupees 500, and 1st Feb, amount rupees 500. तो डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट पे सेपरेटली चार्ज कर रहे हैं 1000 पे एट द रेट ऑफ नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2018. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% है 1000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर जून टू 31 मार्च. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 10 month. $750 at the rate of 10% for August to 31st March. August included August, September, October, November, December, January, February, March for 8 months. 1250 at the rate of 10% for October to 31st March. October, November, December, January, February, March for 6 months. And 500 at the rate of 10% for 4 months, December to 31st March. And 1st February, 500 at the rate of 10% for February to March, 2 months. Now interest calculate on separately. 1000 at the rate of 10%, 83 rupees 33 paise. And next 750 at the rate of 10% for 8 months, 50 rupees. 1250 at the rate of 10% for 6 months, 62 rupees 40. ₹43. And next 500 at the rate of 10% for 4 months, 16 rupees 67. ₹62 50 paise. And 500 at the rate of 10% for 2 months, 8 rupees 33 paise. Now total amount interest on drawing ₹83 33 paise. ₹50 ₹62 50 paise. ₹16 67.
प्लस 8 रुपीज़ 33 पैसे, टोटल 220.83, राउंड ऑफ कर देंगे 221 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सेपरेट सिंपल मेथड में सेपरेटली अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया, डेट ऑफ विड्रॉल अप टू द 31 मार्च तक। एंड नेक्स्ट अब समझना है प्रोडक्ट मेथड। इन ए प्रोडक्ट मेथड टेकन सेम वैल्यू ऑन 1 June, डेट 1 August, 1 June amount of drawing ₹1000, 1 August 750, on 1 October 1250, 1 December 500, 1 Feb 500, month June to 31 March ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया था 10 मंथ के लिए, तो इस पर 10 मंथ। नेक्स्ट 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ एंड 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हमारा सेपरेट मेथड था जिसमें हमने सेपरेटली सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज किया। अब नेक्स्ट एज ए प्रोडक्ट मेथड, इन ए प्रोडक्ट मेथड डिफरेंट डेट डिफरेंट अमाउंट, मंथ यहाँ पे लिखा गया किस अमाउंट पे कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और एक प्रोडक्ट वैल्यू यानी कि मंथ और अमाउंट का इंटू करेंगे। इंटू करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, 750 इंटू 8 6,000, 1250 इंटू 6 7,500, 2,000, 1,000. Now total value, total product 10,000 plus 6,000, 7,500, 2,000 and 1,000, total value 26,500. Now total product interest on drawing 26,500 at the rate of 10% for 1 month, क्योंकि ऑलरेडी हमने मंथ का इंटू कर चुका है तो अब 1 मंथ के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हुआ टोटल प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंटेज अपॉन 100 इन फॉर 1 month. Now 26,500 at the rate of 10% for 1 month, amount again value rupees 220.8333. Now round off 221 as the interest on drawing. तो ये डिफरेंट मेथड है, 2 मेथड, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में सेपरेटली चार्ज किया गया एंड प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट और मंथ का प्रोडक्ट करके उस टोटल प्रोडक्ट पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 month. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने समझी हैं तो उसमें फर्स्ट था डेट ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया होता था तो हम 6 मंथ के लिए चार्ज कर रहे थे। फिर हमारे सामने डिफरेंट डेट एंड डिफरेंट अमाउंट था जिस पे हमने 2 मेथड समझा, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया गया। सिंपल मेथड में सेपरेटली चार्ज किए और प्रोडक्ट मेथड में अमाउंट और मंथ का प्रोडक्ट करके टोटल प्रोडक्ट वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो ये 2 मेथड है। अब हमें एक और मेथड समझना है जिसमें बात की जाएगी एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग। तो उसमें यानी कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन जो होगी वो डेट सेम होगा और डेट विड्रॉल ऑफ अमाउंट दोनों सेम होंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर
19A, जिसकी लैंग्वेज है गोपाल इज़ अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विदड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ during the year ended 31st March 2018 for personal expenses. If interest on drawing is charged at the rate of 12% per annum, calculate the interest on drawing of Gopal. तो गोपाल इज ए पार्टनर है फर्म में. ही विदड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली फॉर द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2018. यानी कि 1000 एवरी मंथ विदड्रॉ कर रहे हैं. एवरी मंथ के फर्स्ट डे में वो विड्रॉल कर रहे हैं. इंटरेस्ट चार्ज करना है 15%. तो इस सिचुएशन में जब डेट सेम है और अमाउंट सेम है तो हम यहाँ पे एक एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं. और उसके लिए हम फार्मूला कैसे जनरेट होता है ये भी अच्छे से क्लियर करेंगे. नाउ मिस्टर गोपाल विदड्रॉ 1000 rupees per month regularly. Now accounting year 1st April to 31st March. Now first withdrawal in April month, next May, June, July, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च. एवरी मंथ 1000 rupees withdrawal. Date of withdrawal every month is same. First day of every month, that means 1st April, 1st May, 1st June, 1st July, 1st August, 1st September, 1st October, 1st November, 1st December, 1st January, 1st Feb and 1st March. ये जो है फर्स्ट मंथ है 1st अप्रैल. इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है एट द एंड ऑफ द ईयर 31st मार्च को. तो 1st अप्रैल टू मार्च 12 मंथ, मई टू मार्च 11 मंथ, जून टू मार्च 10, July to March 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो यानी कि जो फर्स्ट विड्रॉल है उस पर 12 मंथ, सेकंड विड्रॉल पे 11 मंथ के लिए, थर्ड विड्रॉल पे 10 मंथ के लिए एंड फोर्थ विड्रॉल 9 मंथ ऐसे. और लास्ट 1st मार्च को विड्रॉल किया गया. इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 31st मार्च को, यानी कि 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. तो अगर ये जो मंथ है इसका हम अभी बात की जाएगी कि अगर डेट सेम है और अमाउंट सेम है तो हम एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं. तो नाउ एवरेज मंथ कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 6 5 4 3 2 and 1, total 78, and average divided by 12 is equal to average month 6.5 month. तो ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं. तो इतना ये जो आपके सामने समझाया गया ये सिर्फ ये फार्मूला जो है एवरेज मंथ ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा 1000 रुपीज़ पर मंथ, टोटल अमाउंट 12,000 विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज 15% पर एनम फॉर एवरेज मंथ कैलकुलेटेड 6.5 मंथ. तो कैलकुलेट कर लेंगे 12,000 एट द रेट ऑफ 15% फॉर 6.5 मंथ, अमाउंट रुपीज़ 975 rupees as a interest on drawing. ये आंसर है. तो ये जो है सिर्फ ये समझना है
यहाँ पे कि किस तरीके से हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं। तो एवरेज मंथ 6.5 मंथ, तो चेक करेंगे और सिंपल करते हैं। फर्स्ट मंथ पे 12 मंथ के लिए एंड लास्ट मंथ पे 1 मंथ के लिए। तो इसके भी यहाँ पे भी 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ एवरेज। अब बात करते हैं यही डेट, अगर हमारा इन 1000 विदड्रॉ एवरी ईयर रेगुलर एवरी मंथ रेगुलरली एंड date of withdrawal end of the every month, that means 30 April, 31st May and 30 जून, 31st जुलाई, ऐसे कंटिन्यू होकर के लास्ट में 31st मार्च को विड्रॉल कर रहे हैं। इस सिचुएशन में अब सिंपल कर लेते हैं फॉर्मूले को। फर्स्ट विड्रॉल 30 अप्रैल, इफ एंड ऑफ द एवरी मंथ 1000 रुपीज़, तो फर्स्ट मंथ पे विड्रॉल पे इंटरेस्ट लगेगा 11 मंथ के लिए, क्योंकि अप्रैल कंप्लीट, अप्रैल एक्सक्लूड कर देंगे। अप्रैल टू 31st मार्च 11 मंथ एंड लास्ट विड्रॉल 31st मार्च, जिस पे हम एक भी दिन का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तो लास्ट विड्रॉल पे 0। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर डेट ऑफ विड्रॉल एवरी मंथ के एंड में है, तो इस सिचुएशन में फार्मूला जनरेट करके 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 5.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेगुलरली 1000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं। मिड ऑफ एवरी मंथ, दैट मीन्स 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड 15 अगस्त एंड एज ए सेम लास्ट इन अ मंथ 15 मार्च। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो विड्रॉल है, इस फर्स्ट विड्रॉल पे हमारा 11.5 मंथ के लिए चार्ज होगा एंड लास्ट पे 0.5 मंथ। इस सिचुएशन में फिर से फार्मूला जनरेट किया गया एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग 15.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला जनरेट कर रहे हैं एवरेज मंथ के अकॉर्डिंग, जिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19B फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। In a question 19B, XYZ three partners in a firm, you are informed that first X withdraw rupees 4000 from the firm at the beginning of every month. Now X draw rupees 4000 beginning of every month। तो एवरी मंथ के बिगनिंग में कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ पे हम कह सकते हैं 12 मंथ एंड लास्ट पे 1 मंथ के लिए चार्ज होगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नाउ 4000 रुपीज़ विदड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ, तो 12 मंथ के अकॉर्डिंग टोटल विदड्रॉ 48,000, इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम for average month 6.5 month. Now calculated amount 48,000 at the rate of 9% for 6.5 month, 2,340 rupees. And why draw 4,000 from the firm at the end of every month? Why draw rupees 4,000 per month end of every month? Now first withdrawal 11 मंथ एंड लास्ट इन ए मार्च 0 मंथ के लिए चार्ज होगा। एवरेज के अकॉर्डिंग 5.5 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। टोटल विड्रॉल ड्यूरिंग द ईयर 48,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 5.5 मंथ।
1980 rupees for interest on drawing. And next, Z. In third, Z draw 4,000 from the firm in the mid of every month. Z draws rupees 4,000 per month, middle of every month. तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला, फर्स्ट विड्रॉल इन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल to 31st March 11.5 month, and last withdrawal 15 March, interest charge on 31st March for half month divided by 2 equal to 6 मंथ के लिए एवरेज बिहाफ पे चार्ज करेंगे. टोटल विड्रॉल 48,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 6 month. Rupees 2,160 rupees interest on drawing. Now question number 19 we complete.